Good morning, friend. My name is Deepak Singh Bist. We will start next chapter 4. We already learn about how to create group and ledger, and in which included we discuss sundry debtor and sundry creditor. How to create a group and ledger, alter and delete the group and ledger. After that, we will learn about opening bill allocation. Opening bill allocation mean we have number of transaction in month, and we will include bill number or invoice number in open bill allocation. That's mean creation, alteration and delete the ledger of bill allocation. After that, we check out report, we trial balance and balance sheet. Let's discuss with the example. Suppose we have a company in which include buyer and seller. When company required to buy the raw material, we will call accounting terminology sundry creditor. Example, Deepak Enterprise is name. Another aspect of seller. Company sells the goods, we will call sundry debtor. And example, Lakshmi Enterprise. We will discuss you what is sundry creditor. Suppose our company buy any goods from any company, another company, another company who give goods or services from a business in credit and its liability to pay the business in the future. Sundry creditor is considered as liability to a business at the time when you have made a credit purchase. Credit purchase mean आपने उधार में लिया है from your party, and you can mutual agreement with your party to make part payment and make the total payment with specific time of period. Let's discuss. Suppose MS Deepak Enterprise, number of transaction, we take off 4 transactions. First transaction is 1st April 2022 and bill number is company 001. Buy a printer when the buying price of 15,000 and to payment 30 days after to pay 15,000. Another bill our 1st May 2022, bill number is 15. Buy a pen drive and pay 2,000 and credit period is 30 days. And third is 1st January 2023 and bill number 356, and we buy the keyboard 450 and credit period is 30 days to pay the another party. And one more item, March 2023, bill number 65, stationery 30 days to pay 5,000, and all bill are total is 22,450 to pay the another company. Opening balance of sundry creditor apart from the opening balance from the ledger 20,450 is our opening balance, and we put under sundry creditor. These bill proper detail is mentioned in bill allocation. Apart from opening balance from the ledger, you want balance to be maintained bill by bill and bill wise. You can use the bill allocation capability in TelePrime to create one or more bill reference as per the breakup decision. Decide each bill reference can also be specified with credit period or due date. We check out bill number is reference number and credit period how many days to pay. 30 days is credit period to after purchasing date. Invoice date after 30 days you pay 15,000. Bill allocation of creditor
allocation the balance is opening balance is 22,450 rupees is opening balance. If you have already create a ledger, then you need to alter the ledger and put bill allocation. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल एलोकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कंपनी है हमारी गौरव नाम की, हमने ऑल्ट के प्रेस करना है और F11 पे जाना है। आपने ये ऑप्शन देखिए अनेबल बिल वाइज एंट्री, अगर ये आपका ऑप्शन यस होगा तो आप क्या है मेंटेन कर पाओगे बिल बाय बिल एलोकेशन। अगर ये डिसेबल होगा तो आप क्या है बिल बाय बिल आपके रेफरेंस एंट्री नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा बिल किसके लिए है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपने पिछले चैप्टर में सीख लिया। सबसे पहले हमें गेटवे टैली पे आना है, उसके बाद हमने मास्टर में जाना है। मास्टर के अंदर आपने लेजर को सिलेक्ट करना है। अब नेम पे आप क्या प्रेस करोगे, दीपक सिंह, दीपक एंटरप्राइज एक कंपनी का नाम है, और उसके अंदर क्या रखोगे, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे क्या आएगा दीपक एंटरप्राइज, और अंडर किसके अंडर रखना है, दीपक क्या है सन्ड्री क्रेडिटर। आप देख सकते हैं ये हमने ये दो कंपोनेंट नेम और अंडर सीखा था। अब हमारे लिए ये थर्ड कंपोनेंट है मेंटेन बिल बाय बैलेंस बिल बाय बिल। अगर ये आपका नो होगा तो आप अपना ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे बिल बाय बिल। ये ऑप्शन कैसे आया आप ये भी देख लीजिए। हमने F11 प्रेस किया था, ऑल्ट के F11, यहाँ पे हमने अनेबल किया हुआ है बिल बाय बिल एंट्री, यानी कि हर बिल की अलग डेट और वाउचर नंबर अलग होगा उसका। और फोर्थ ऑप्शन इज हियर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज अवर, इस केस में क्या है हमने बिल बाय मेंटेन को यस नहीं किया है, सीधा ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 22,450 का। आफ्टर दैट आप कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे जब आपको बिल बाय बिल एलोकेशन नहीं करनी है। लेकिन हर बिजनेस में क्या होता है बिल बाय बिल मेंटेन करना जरूरी होता है। हमें उस बिल के खिलाफ कितने अमाउंट रिसीव हुई है, तो हमें ये इससे इंडिविजुअली एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। आप देखते हैं यहाँ पे हमने दीपक एंटरप्राइज डाला, अंडर किसके अंदर सन्डी क्रेडिटर, इसको नो रखा है सिंपली। तो हमें क्या है यहाँ पे बिल एलोकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हम सिंपली क्या है ओपनिंग बैलेंस डाल के इसको खत्म कर लेंगे। अब हम लोग अनदर मेथड यूज करते हैं जिसमें हम बिल एलोकेशन का यूज करेंगे। उस पे आपके पास अलग से एक ओपन होगा बिल एलोकेशन का। आपने सबसे पहले क्या करना है दीपक एंटरप्राइज, उसके बाद अंडर किसके रखना है सन्डी के एडिटर। अब हमने क्या है मेंटेन बिल बाय बिल, ये क्या है बिल एलोकेशन को ओपन करने में हमारी हेल्प करेगा। आफ्टर दैट हमें डिफॉल्ट पीरियड क्या रखा हुआ है 30 दिन के बाद इस बिल की हमें पेमेंट चाहिए। अब ये प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर में 31/3/2023 फाइनेंसिंग ईयर क्या था इसका, कोई बता सकता है? 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023 इसका क्या है फाइनेंसिंग ईयर है। अब हमें क्या है ये हमने लेजर दीपक एंटरप्राइज है, उसके बाद हमने अंडर पड़ा सन्डी क्रेडिटर है, और हमने बिल बाय बिल मेंटेन को भी यस किया। उसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड की हमें 30 डेज के बाद हमारी पेमेंट वापस चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या है एक और ऑप्शन होता है जो कंपल्सरी होता है, पैन नंबर किसी भी पार्टी का लेते हो तो उस कंपल्सरी होता है उसका पैन नंबर और जीएसटी नंबर। अनदर इज, और दूसरा हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड होता है मोबाइल नंबर, जिससे कि हम कांटेक्ट कर सके। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है फिल करने के लिए। अभी हम सिर्फ क्या है लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार डालते हैं बिल बाय बिल एलोकेशन से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने जैसे ही अपना ओपनिंग बैलेंस क्या है ये सब फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि 22,450, अगर आपका यहाँ पे बिल बाय बिल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो रहेगा तो आपको ये वाली विंडो नहीं मिलेगी। हमने ये बिल बाय बिल मेंटेन ओपन किया है, तो अब हमने यहाँ पे क्या है, जो बिल मिले हुए इंडिविजुअल कॉन्स, हमारे पास 4 बिल थे, एक अप्रैल का था, एक मई का था और एक जनवरी का और एक मार्च का बिल था 2023 का। अब हमने उस बिल को क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है। फर्स्ट होता है आपके पास डेट, डेट के अंदर जो भी बिल की इनवॉइस डेट है। नेम के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, बिल नंबर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेम के अंदर क्या डालते हैं, बिल नंबर। और कितने दिन के बाद क्रेडिट बाय डिफॉल्ट होता है, 30 डेज हमने रखा हुआ है। और अमाउंट, कितनी अमाउंट उस बिल के अगेंस्ट पे करनी है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट बिल 1 अप्रैल 2022, बिल नंबर है 001। हमारे पास क्रेडिट डेज है 30 डेज, यानी कि 1 मई को हमारा बिल क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अमाउंट कितने का था वो, जो बिल का 15,000। अनदर बिल हमारे पास क्या है, 1 मई 2022 में हमने बिल नंबर 05 और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमें 30 डेज। आप इसमें जितना भी क्रेडिट पीरियड उसको दे रहे हो 6 मंथ का होगा तो 180 डेज आएगा। हमने 2000 का प्रोडक्ट खरीदा। थर्ड एंट्री इज 1 जनवरी 2023, बिल नंबर 356, 30 डेज 450। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर का है 1 मार्च 2023, बिल नंबर 65, 30 डेज 5000 अमाउंट। टोटल जो इसका बना हुआ है एग्रीगेट, हमारा जो बिल ओपनिंग बैलेंस था कितना हुआ है इनका, टोटल 22,450। इन केस आपको अगर किसी बिल के 22,400, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई एक बिल जैसे लास्ट वाला बिल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास ये ऑन अकाउंट 5,000 की अमाउंट ट्रांसफर पे डालते हैं। इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे बिल बाय बिल को ब्रेकअप एनालाइज के थ्रू। अब हम लोग इस बिल को ऑल्टरेट करना भी सीखेंगे। ऑल्टर कैसे करते हैं, गेटवे टैली पे जाना है आपने, उसके बाद क्या करना है, वहां पे लेजर को सिलेक्ट, ऑल्टर पे जाके लेजर को सिलेक्ट करना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीपक एंटरप्राइज लिखा था सी, लेकिन हमने क्या किया, इसको ऑल्टर किया, इसको रिकरेक्शन किया दीपक एंटरप्राइज। ये हम लोग रिकरेक्शन करेंगे तो हमें कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। ये स्टेप बताया हुआ है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर, लेजर, सिलेक्ट लेजर नेम, जिसको भी आप चेंजेस करने जानते हो। मैं दीपक एंटरप्राइज लिखा था, हमें एंटरप्राइज लिखना था। और डिलीट करने के लिए सेम ऑप्शन है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर पे जाना है, ऑल्टर सिलेक्ट करना है लेजर, और आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस डी। तो इस तरीके का आपसे पूछेगा क्या आप डिलीट करना है, तो आप यस करोगे तो वो लेजर आपका डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं इसकी कहाँ पे मिलती है हमें। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस जाएंगे, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर और ये आपको इस तरीके से नहीं दिखेगी, आपको ऑल्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा, तब आपको ये सिंडिकेटर की डिटेल दिखेगी। नहीं तो आपको क्या है, कैपिटल अकाउंट की डिटेल दिखेगी जिसमें आपका 30,000 है, और दूसरा आपको ये दिखेगा करंट लायबिलिटी 22,400 एंड कैश अमाउंट दिखेगा 30,000। अब ये तीन ही अमाउंट दिखेंगे। हमने इसको लाने के लिए क्या किया, ऑल्ट F1 प्रेस किया है, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा अपने हेड के अंदर कौन कौन से हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपने कैसे जाना है, गेटवे टैली पे क्या है, मेन्यू में बैलेंस शीट होती है, आपको वो प्रेस करना है। और उसके बाद क्या है, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे भी वो बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दिखेगा, लायबिलिटी साइड पे सन्डी क्रेडिटर आप देख सकते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं संडी डेप्टर। हमने लेजर क्रिएट करना सीख लिया। अब कंपनी कोई प्रोडक्ट को सेल करती है दूसरी कंपनी को, तो कंपनी हु रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस इन क्रेडिट। हम लोग कोई भी गुड सेल करते हैं तो कोई हमें नगद दे सकता है, कोई हमें कैश में दे सकता है, लेकिन हम लोग क्रेडिट में दे रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देते हैं, क्योंकि एवरी बिजनेस के लिए क्या है, मनी इज इम्पोर्टेंट। विदाउट मनी business not generate the profit. Sundry debtor are considered as assets to a business. अब हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल है। सपोज करो कंपनी ने सेल्स किए हैं 4 आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में। हमारे पास बिल नंबर भी डिफरेंस है, हमारे पास आइटम भी अलग अलग है, और क्रेडिट पीरियड भी अलग अलग दिया है कि इतने दिन। हमें मिनिमम 30 डेज का रखा हुआ है कि हमें मिनिमम 30 डेज के अंदर हमें अमाउंट चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये बिल जो परचेज किया था 1 अप्रैल 2022 में, जो बिल नंबर हमने बनाया 54, और क्या बेचा, प्रिंटर बेचा 20,000 का। सेकंड बिल हमारे पास है 1 अगस्त, जो बिल नंबर है 150, और हमने आइटम क्या लिया हुआ है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को सेल किया है 4000 में, जबकि हमने परचेज कितने में की थी, 2000 में। तो यहाँ पे कंपनी ने मुनाफा कितने का कमाया, 2000 का, लेकिन पेमेंट कितने दिन बाद मिल रही है उनको, 30 डेज क्रेडिट पीरियड। उधार में बेच रही है कंपनी। इन केस कैश में दे रही होती तो तुरंत हमारे पास क्या होता है, 4000 हमें रिसीव होता, तब ये हमें यहाँ पे दिखती नहीं। अब थर्ड हमने सेम 1 फरवरी 2023 बिल नंबर 356, जो कि कंपनी ने क्या है, कीबोर्ड बेचा 5000 का। अनदर बिल 1 मार्च 2023 बिल नंबर 295 स्टेशनरी 2000, और इन सब का टोटल अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास, ये जो सारा अमाउंट है पूरे साल का 31,000 की हमने क्या है, पेमेंट लेनी है संडी डेप्टर से। तो जिसको हम सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संडी डेटर। जिससे हम बाय करते हैं उसको कंपनी क्या बोलती है, सन्ड्री क्रेडिटर। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें जो भी ओपनिंग बैलेंस है 31,000 का, उसका बिल बाय बिल मेंटेन करना है, उसका बिल एलोकेशन करना है, किस किस डेट को हमने परचेज की, कौन सा आइटम था, कौन सा बिल नंबर था, और अमाउंट। ये रेफरेंस होते हैं, हमें ये पता लग जैसे किस बिल के, कौन से बिल की पेमेंट नहीं दी है, तो हमें ये पता लग जाता है किसके थ्रू, बिल बाय एलोकेशन। बिल एलोकेशन ऑफ संडी डेप्टर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सेम जैसे संडी क्रेडिटर में किया था, सेम एज ही संडी डेप्टर में करना है। allocation the balance is opening balance. If you have already create ledger, then we need to alter the ledger and put bill allocation. अब हम लोग देख लेते हैं कि बिल बाय बिल एलोकेशन हम लोग किस तरह करते हैं। हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास 4 बिल थे जिनको हमने अलग अलग मंथ में सेल्स किया था, और उनकी टोटल अमाउंट हो रही थी 31,000, और जो कि उस फाइनेंसिंग ईयर में हमें रिसीव नहीं हुई थी। हमें नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में इस अमाउंट को रिसीव करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन, बिल अनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर ये ऑप्शन नहीं करोगे तो आप बिल बिल एलोकेशन, बिल बाय बिल या बिल वाइज ब्रेकअप नहीं कर सकते। ओके, आफ्टर दैट हमने लेजर क्रिएट करना सीखा था। लेजर क्रिएट करने में हमारे पास कंपनी का नाम क्या है, लक्ष्मी एंटरप्राइज, और अब हमने अंडर किसके रखना है, सन्ड्री डेप्टर के अंदर। ये हमारे लिए क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। आप देख सकते हैं लक्ष्मी एंटरप्राइज अंडर सन्ड्री डेप्टर। अब अगर आप ये ऑप्शन सिलोगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो, तो आपने 31,000 का यहाँ पे बैलेंस डाला। अब हमने लक्ष्मी एंटरप्राइज
अमाउंट दूसरा मेथड है कि हमने क्या करना है, मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल को क्या करना है, यस करना है। उसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को भी हमने क्या करना है, 30 डेज को सेट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है, 31,000 है, ये गलती से 3,10,000 हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट बिल जो था वो है 1 अप्रैल 2022 में, जो 54 बिल नंबर है और 30 डेज का क्रेडिट 20,000 का हमने दिया है। 1 अगस्त 2022 में बिल नंबर 150 एंड हमारे पास क्रेडिट डेज है 30 डेज का और 4,000 रुपया पेमेंट करनी है। और तीसरा बिल है हमारे पास 1 फरवरी 2023, फाइनेंसिंग ईयर आप देख रहे हो चेंज हो गया है क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंसिंग ईयर है, तो ये उसके अंदर कवर होता है। ये जो डेट आप देख रहे हो ये हमारी फाइनेंसिंग डेट के अंदर होती है 31 मार्च। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, 5,000 अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है एक और बिल 1 मार्च 2023, बिल नंबर है 295, 30 डेज का है और 2,000 अमाउंट। आप देख सकते हो हमारे पास 31,000 का क्या है टोटल अमाउंट। उसके बाद हमने रिपोर्ट चेक किया ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पाथ बताया कि किस प्रकार जाना है। आपने सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली मोर रिपोर्ट के अंदर जाना है और ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट करना है। अब ये ट्रायल बैलेंस में आपको इंडिविजुअल दिखेगा, प्री डिफाइंड हेड्स हैं जो ग्रुप्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर, ये 3 दिखेंगे हमें फिगर्स, आप उसके अलावा नहीं देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, सन्डी क्रेडिटर आपने देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे आपने देख लिया ये एसेट साइड दिख रहा है आपका, ये देखो एसेट साइड में 31,000 है जो करंट एसेट इसका क्या है, प्री डिफाइंड ग्रुप है जिसके अंदर टोटल कर रहा है 61,000। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी बैलेंस शीट की है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो सन्ड्री डेप्टर 31,000 की एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपने कंपनी बना ली होगी गौरव नाम की, आपको मैं दिखा दूं ऑल्ट के ऑल्टर, आपने इस प्रकार कंपनी बना दी होगी। फाइनेंसिंग ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 23 इस करंटली है, ठीक है। आपने कंपनी क्रिएट कर दी। अब हम बात करते हैं कि लेजर क्रिएट करना है हमें, तो क्रिएट पे जाएंगे, लेजर सिंपल हमारा MS दीपक एंटरप्राइज, अंडर पे आपने सिलेक्ट करना है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे अब मैं आपको नो करके दिखाता हूं पहले क्या फर्क है और बाद में क्या फर्क है। अब आपने ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 22,450, ये आपका मेंटेन नहीं करेगा बिल बाय बिल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी बिल को ऑल्टर करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑल्ट के फीचर बिल, ये क्या होना चाहिए, हमेशा यस होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर पे जाते हैं। ऑल्टर पे जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया था, किस नाम से क्रिएट किया था, MS दीपक इंटरप्राइज। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसको यस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्रेडिट पीरियड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे यस करोगे, सॉरी यहाँ पे 30 डेज कर देते हैं। एंटर करते हुए आपने आना है ओपनिंग बैलेंस में। अब आपसे पूछेगा कि आपके पास बिल कौन कौन से हैं। हमारे पास एक बिल था 1 अप्रैल, यहां पे हमने क्या मेंशन करना है, बिल नंबर और कितने डेज का हमें ड्यू मिला हुआ है, 30 डेज का। अमाउंट, अब ये 22,000 में से 15,000 लेस हो जाएगी, इस पर्टिकुलर बिल पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमने सेकंड बिल 1 मई
को सिलेक्ट किया था। इस बिल का नंबर क्या है हमारे पास 15, 30 डेज, और अमाउंट क्या है हमारे पास 2000। नेक्स्ट हमने परचेजिंग की थी 1/5 को, और इसका इनवॉइस नंबर है 356। 30 डेज का इसमें भी हमें पेमेंट करना था 30 डेज के अंदर 450 का। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 मार्च 23। हमारे पास एक ये एंट्री गलत हो गई, ये आपका आना था 1/1/23। डेट आपको याद रखना है जिस डेट को आपने परचेजिंग, क्योंकि इसी के आधार पे हमें जीएसटी भी बनती है, हमारी जीएसटी रिपोर्ट। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमने अपने पिछले फाइनेंसिंग ईयर की डिटेल डाली है कि कौन कौन सी अमाउंट है, जिसका टोटल क्या है 24,450 जो है, ये हमें अभी क्या करना है, पे करना है दूसरी कंपनी को, हमारी लायबिलिटी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर लोगे। अब आप इसकी रिपोर्ट कहां पे देख सकते हो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। यहां पे आपको देखो संडी क्रेडिटर किसका होता है, किस ग्रुप के अंदर है, करंट लायबिलिटी के अंदर है। किस ग्रुप के अंदर है, करंट लायबिलिटी के अंदर आपको दिख रहा होगा 22,450। अब हमें ये जानना है कि इस ग्रुप के अंदर कौन सा नाम है, तो आप देख रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सिर्फ अभी क्या है, सन्डी क्रेडिटर है 22,450। अब हम लोग बिल बाय बिल को एलोकेट या चेंजेस भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ऑल्टर पे जाना है आपने, लेजर पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, एंड में आ जाना है। अगर आप इस बिल को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करोगे, ऑल्ट डी। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर बिल को मैं हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट डी, सॉरी कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, ये दो बिल का हमारे पास 17,000 देखो ऑटोमेटिकली उसके क्या है, अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। बिल की जो डेप्टर से हमने रिसीव करनी है 22,450 की, तो 17,000 क्या ऑन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। डिलीट कैसे करना है, कंट्रोल डी से। मैं अनसेव करता हूं इसको। अब नेक्स्ट है हमारा, आप गेटवे टैली पे आके क्रिएट पे जाएंगे, लेजर एमएस लक्ष्मी एंटरप्राइज, किसके अंदर आएगा, सन्ड्री डेप्टर के अंदर। नो करोगे, आपको मैं ऑलरेडी सन्ड्री क्रेडिटर पे दिखा चुका हूं। हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस था 31,000। देखो आपके पास बिल एलोकेशन की ऑप्शन नहीं आई। अब हम इस बिल में क्या करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, एमएस लक्ष्मी एंटरप्राइज पे जाएंगे। यहां पे आपने क्या है, इस ऑप्शन को, किस ऑप्शन को, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस करोगे, और ऑल्ट प्लस के फीचर के अंदर जाओगे, वहां पे भी अनेबल करना है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को जब तक यस नहीं करोगे तब तक आप मल्टीपल बिल्स के रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। यहाँ पे 30 डेज ओपनिंग बैलेंस डालोगे, जैसे ही हमने ओपन डाला अब हमारे पास बिल एलोकेशन की ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगी। सबसे पहला बिल है हमारे पास 1/4/2022 का, बिल नंबर है 0054। अब ये बिल नंबर हमने क्यों डाला, ये हमारे लिए रेफरेंस है। हमारे पास मैनुअल मेंटेन होता है, वहां पे आप इस बिल नंबर को सर्च कर सकते हो। अब हमने कितना डेज का क्रेडिट पीरियड लिया, 30 दिन के बाद ये अमाउंट चुकता करनी है। 20,000 का हमने
प्रिंटर लिया हुआ था। दूसरा बिल है हमारे पास 1 अगस्त 150 बिल नंबर है 30 डेज का, और ये हमने 4000 का लिया था। 1 फरवरी 2023 बिल नंबर है हमारा 356 कीबोर्ड, और 30 डेज का इसमें भी हमें मिला था पेमेंट करने का टाइम। और कितने का है कीबोर्ड? 5000 का। इसके बाद है हमारा 1/3/2023 में हमने क्या परचेज किया था? स्टेशनरी। बिल नंबर है 295। ये हमारे बिल नंबर कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? जीएसटी पोर्टल में। इसीलिए मेंटेन करके रखना होता है कि ये बिल जो हमने जीएसटी पे दिए हुए हैं। 30 डेज का हमारे पास क्रेडिट पीरियड है, 2000 ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कंट्रोल ए भी कर सकते हो शॉर्टकट की। आप देखोगे यहाँ से कंट्रोल ए करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, यस करोगे तब भी सेव हो जाएगा। अब हमारा बिल क्या हो गया? सेव हो गया। हम लोग इस बिल की रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाओगे, इस तरीके से। अब ये हमारा सन्डी डेप्टर क्या होता है, किस नेचर का है? करंट एसेट। ये तीनों क्या है? हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं। इसके अंदर है तो हमें ऑल्ट F1 प्रेस करना है। आप देख सकते हो कि ये आपका सन्डी डेप्टर हाईलाइटेड है। एक बार मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जिसके अंदर करंट एसेट के अंदर कितनी अमाउंट दिख रही है? 61,000, जिसमें से कैश कितना है? 30, और सन्डी डेप्टर से कितना पैसा लेना है? 31,000। और 31,000 हमने जो रिसीविंग करनी है, किस अमाउंट पे करनी है, ये भी चेक कर सकते हैं। एंटर करोगे आपको ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट देखने को मिलेगी यहां से। ये है कि इन बिल्स के खिलाफ हमने क्या लेना है? अमाउंट को रिसीव करना है अपनी पार्टी से। अब हम लोग बैलेंस शीट पे चलते हैं। सेम एज बैलेंस शीट में भी जाएंगे। गेटवे टैली पे आने के बाद बी भी प्रेस करोगे तो बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। उसके बाद इन ऑप्शन को खोलने के लिए ऑल्ट F1 करोगे। आपको एसेट साइड्स पे देख रहे हो सन्ड्री, इसका इफेक्ट हमारा कहां पड़ रहा है? बैलेंस शीट पे भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।